So, hello everyone, welcome back to Study Channel. Myself Anup, and today we are going to discuss on the topic forces. You all are wondering forces? Yes, we are going to discuss on the topic forces, not of physics but of chemistry. Yes, in chemistry there are two types of forces: intermolecular and intramolecular forces that we study in states of matter chapter of class 11 chemistry. So, we start our today's discussion with intermolecular forces. And before I start, some introduction to the new subscribers or who are viewing first time our video. So, intermolecular forces taught by Anup Oja, co-powered by Study Channel, and posted out at sharmamok64 at the gmail.com and ojaanup311 at the gmail.com. If you're not having your mail ID, so join our Telegram and WhatsApp group. Link is in description. And WhatsApp group is especially for 10th class. 10th class as in for boards and NTSC preparation. We day to day provide questions and take live classes. So do join our WhatsApp and Telegram group. So intermolecular forces and intra, there are two types of forces which we study in the states of matter: inter and intra. So what is intra? um, I'll discuss a lot of detail about intermolecular. I'll just give a short description or a brief of intramolecular forces. Intramolecular forces are that forces which act within the molecule. Means, let you show something in first page only. Intramolecular forces means you are having, like example, a hydrogen atom. So, hydrogen atom, okay. In hydrogen atom, in center there are nucleus, there are protons and neutrons, okay. Either protons and neutrons hota hai. And in the shells, that is in the orbitals, electrons revolve around it. So in the orbital, electrons revolve around it. So two forces are acting in this a single molecule, that is repulsive force between electron and electron. Why repulsive? Because like and like always repel, and like and unlike always attract, already, okay. So electron, a repulsive force, sorry electron electron a repulsive force, and between proton, positive means the proton in the center and the electron in the orbitals, the protons or the neutrons are also attracting the electron to be in the molecule, so that the molecule be stable. In the hydrogen atom, okay, in a H atom, I will say in a H atom, because it is a single molecule, okay. The proton and electron are acting within them, and that is attractive force. And electron are acting as a negative, okay. Proton and electron attractive, and electron repulsive. So two forces always intra हो या इंट्रा हो या इंटर, दो फोर्सेस हमेशा लगते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. आप एक कभी नहीं बोल सकते इंटर या इंट्रा के डेफिनेशन में कि द अट्रैक्शन बिटवीन two ions, two atoms, any two nucleons is inter or intra. You have to always say the forces of attraction or repulsion within an atom ion is known as intra or intermolecular forces. So I have given a brief detail about the forces, that is intramolecular forces. Now we'll study detail about intermolecular forces. First of all, what is intermolecular forces? So I have bring two definitions about intermolecular forces. I'll choose red. Okay, what is intermolecular forces? First, here I have written the force of attraction, but I have forgotten to written in bracket uh, force of attraction may be attractive or repulsive. Okay, I'll choose to cut this. I'll cut this attraction. Cut this. In bracket, I'm going to written attractive ATT. I'll denote by ATT, and repulsive REP. Okay, repulsive.
ओके, सो अट्रैक्शन लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट अट्रैक्शन के ब्रैकेट में आपको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लिखना होता है, क्योंकि फोर्सेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। व्हाट वाज इंट्रा? इंट्रा वाज विद इन अ मॉलिक्यूल, इट इज बिटवीन, यानी कि दो कोई मॉलिक्यूल ले लो आप, हाइड्रोजन क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन फ्लोरीन ले लो, या फिर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, दो में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, दैट इज नोन एज द intermolecular forces. And here's a brief about that, sorry, in some details, if it is as asked in 2 or 3 marks, a detail I bring the force of attraction or repulsion. See, here I have written the force of attraction or repulsion. Okay, here I have written attraction or repulsion existing among the particle of a substance other than electron. electrostatic force क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर करने का मतलब है वो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स के जो फोर्सेस नहीं रहते, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, लाइक ऑलवेज अट्रैक्ट। सो अदर दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इंट्रा में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे तब इंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोड़ के जो अदर दैन जो फोर्सेस लगते हैं, अदर दैन फोर्सेस अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। द अदर दैन फोर्सेस विच जो लगते हैं ना, उन्हें हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं। वो अपोजिटली चार्ज आयंस रहते हैं, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम भी रह सकते हैं, कोई तरह दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर इंटरमोलिकुलर, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर इंटरमोलिकुलर। वन मोर a question is that attractive intermolecular forces are also known as, it can be asked in one marks question, attractive intermolecular forces are also known as van der Waals force, which I will discuss in next videos. Okay, so intermolecular, I have given a clear cut about this, the force of attraction or repulsion existing among the particle of a substance other than electrostatic that exist among the oppositely charged ions and the forces that hold atom of a molecule together. ठीक, तो इसलिए लगते हैं ताकि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में रखे रहे, बॉन्ड न टूटे। बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, बॉन्ड क्या, हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जिसकी वजह से टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सॉरी इधर 5th तक ही आया है, वैसे 6 टाइप्स ऑफ होते हैं 4 है। आप जनरली एनसीईआरटी में 4 ही देखोगे, लंडन डिस्पर्शन, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड वन मोर इज हाइड्रोजन। ओके, वन मोर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, okay, one more is hydrogen bond. Okay, hydrogen, I was not having space, hydrogen. And 2 more forces, I'll introduce you, ion dipole and ion induced dipole interaction. Okay, so we start with London dispersion forces. I bring you with a general definition, it's just a definition, and I will detail you the London dispersion force with example. Okay, so the force of attraction between the induced momentary dipoles, induced momentary, ध्यान देना, induced momentary बोल रहा हूँ, induced momentary का मतलब अभी मैं आगे समझाता हूँ। induced momentary dipoles are called London dispersion force, यानी कि देखो क्या इसके डेफिनेशन में क्या आप समझना चाहते हो, मतलब क्या बोल। सो हम हीलियम का लेते हैं, हीलियम का एक हमने ले लिया, हीलियम के 2, अब मैंने उसमें लिखा था इंड्यूस्ड मोमेंट्री से ये क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन में बदलने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे इन दोनों में। अब ऐसा है कि देखो हीलियम का जो है बीच में पॉजिटिव, हीलियम स्टेबल है, ओके,
इसके पास कोई डाइपोल अभी नहीं है, कोई भी डाइपोल नहीं है। डाइपोल ये होता है कि एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव आ जाए और एक तरफ पार्शियली नेगेटिव आ जाए, वो हम हम उसको बोलते हैं कि उसके पास डाइपोल मोमेंट है। क्यों? या फिर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या फिर नेगेटिव की तरफ। अभी तो ये स्टेबल है भाई, कि हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, स्टेबल है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ इंस्टेंटेनियस या मोमेंट्री चेंज होने के, मोमेंट्री मतलब अचानक से कुछ बदलाव आने से एक साइड हीलियम एटम का क्या हो जाता है, ये देखो, ये जैसे हीलियम मान लो, एक साइड इसका पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है और एक साइड इसका पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द हीलियम एटम, वन साइड partially positive charge helium atom gains one side partially positive and the other side partially negative. Because of the partial charges on the helium atom caused by the momentary of the electron, the it gains the dipole moment. dipole यही होता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जिसके पास होता है। हाँ, डाइपोल ऐसे आपने चैप्टर 4 में पढ़ा ही होगा। सॉरी, ये नहीं, इधर समझा था, ये डाइपोल वाला। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन द हीलियम एटम गेन्स, ड्यू टू द मोमेंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स द हीलियम एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डाइपोल मूवमेंट। सो बिकॉज ऑफ द हीलियम, one single helium atom is gaining the dipole momentary. Because of that, the other helium will also get dipole, that is known as induced dipole. यानी कि a dipole है तो इसके बाजू वाला जो रहेगा ये भी डाइपोल दिखाएगा, ये भी डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा। तो फ्रिट्ज लंडन नाम का जो आदमी थे जिनके नाम पे फोर्स पड़ा है, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर किया कि स्टेबल एटम्स में, जैसे कि स्टेबल्स एटम FO बोल रहा हूँ, अपने जो ग्रुप 18 रहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जो ये सब रहते हैं, इनके में जब एक इंस्टेंटेनियस चेंज कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इनके डाइपोल आ जाता है, उसकी वजह से जो बाजू वाला रहता है दैट ऑल्सो गेट्स डाइपोल. This is known as London dispersion force and it was discovered by Fritz London. So London dispersion force in short मैं बता देता हूँ. देखो, एक स्टेबल एटम है हीलियम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक, इंस्टेंटेनियस चेंज है. इंस्टेंटेनियस चेंज यानी आप बैठे हो भूकंप आ गया, इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ, भूकंप ऐसे ही नॉर्मल, ओके. तो उसकी वजह से एक साइड हमारा इधर समझो इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए और एक साइड पूरा पॉजिटिव, जिसकी वजह से भाई डाइपोल आ गया इस पर, ठीक. और इस पे डाइपोल आया तो इसके बाजू वाला भी इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा. इंड्यूस डाइपोल कैसे होगा? जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करती रहती है, किसी पोल से इलेक्ट्रिसिटी पास करती रहती है, ओके. आपने वो पढ़ा नहीं है, वो कॉइल लपेटने के बाद आप मैग्नेट ऐसे थोड़े से डिस्टेंस पे मैग्नेट, अगर आप उस सरफेस के ऊपर, हमने शायद क्लास 8 में ऐसा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स पे, मैग्नेटिक फील्ड्स पे किया होगा. 10th में भी अपने पढ़ा है कि जब मैग्नेट किसी कॉइल पे जाता आता रहता है, उस पर अगर आप रब करोगे हल्का हल्का, जैसे मान लो एक कॉइल है, कॉइल लपेटा हुआ है, इस पर कॉइल और मैग्नेट आप इसके ऊपर करते हो, ये क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर आ जाता है. सेम इज लाइक दैट इन दिस ऑल्सो, ठीक. इसमें भी वही होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हो या मैग्नेट के सामने, आप मैग्नेट अगर लोहे पे ऐसे 2 बार आप रब करोगे, थोड़ा कुछ डिस्टेंस के ऊपर से रब करोगे, तो वो लोहे वाला भी कुछ देर के लिए उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. सेम इज लाइक दैट लंडन डिस्पर्सन फोर्स. ओके, ऑल क्लियर. अब मैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स का कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे कि लंडन डिस्पर्सन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स, सॉरी मैं इधर से एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, ठीक. तो लंडन डिस्पर्सन फोर्स में क्या होता है कि कोई भी फोर्स, देखो लंडन डिस्पर्सन फोर्स में एक होता है कि 1/r6 पूछते हैं. ये 1/r6 क्या है?
कि जो दो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जो हीलियम हीलियम इंटरैक्ट करेगा, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। जो अट्रैक्शन रहेगा दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो? 1/r6 मैंने बोला है, यानी कि इसमें क्या है कि 1/r6, r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स है, r रिफर्स टू द डिस्टेंस, r है डिस्टेंस, और लंडन फोर्स वीक फोर्स है, और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी -500 पिकोमीटर तक ही काम करेगा। उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे, 501 कर दोगे, 600 कर दोगे, तो लंडन फोर्स काम ही नहीं करेगा। ठीक, तो इट एक्ट्स at a very short distance, that is -500 picometer, and r refers to the distance which is inversely proportional to the attraction, यानी कि attraction कम, ठीक, मतलब attraction ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम, attraction कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा, समझे? जैसे कि हीलियम पास में रहेंगे ना, देखो ये हीलियम ये पास में रहेंगे तो इनका डिस्टेंस कम है भाई। ठीक, अगर इनमें अट्रैक्शन कम हुआ, ये लोग दूर गए तो डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, के से मैंने डिनोट किया है अट्रैक्शन को। ठीक है, और भी आपका अदर्स बुक्स में देखोगे तो एक आएगा आपको के इक्वल टू, सॉरी के नहीं, ओ के से कुछ और, जैसे मैं अट्रैक्शन को ए मान लेता हूँ। चलो, आप किसी बुक्स में पाओगे कि ए माइनस के मतलब आप इसमें मैंने इसमें के डिनोट किया, माइनस के दूसरा हो जाएगा 1/r6 हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा है, ठीक, वो दूसरा फॉर्मूला, पर आपको यही याद रखना है कि के क्या, आप अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r6। ओके, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ये था गैशियस के लिए लंडन डिस्पर्शन फोर्स व्हेन द मॉलिक्यूल इज स्टेशनरी। मॉलिक्यूल इन स्टेशनरी मतलब सॉलिड में क्या होता है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। सॉलिड के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े मूवमेंट करते हैं, बस उतने ज़्यादा नहीं। तो सॉलिड के लिए हमने क्या लिया है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। ओके, तो ये था हमारा लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन थोड़ा लंबा चल दिया हम लोग ने। अब हम बढ़ते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन में अगर कोई दिक्कत हो, मेल आईडी दी है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग वहाँ अपना डाउट्स पक्का पूछ लीजिए, आई क्लियर इट। ओके, नाउ डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल इंटरेक्शन उसकी वजह से होता है जो पहले से ही एक डाइपोल मूवमेंट हो, ठीक, पहले से जो दो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो। इसको ज़्यादा ब्रीफ नहीं, डाइपोल बहुत ईजी है, डाइपोल इज़ वेरी ईजी, कि पहले से जो दो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है इसको हम डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने HCl दिया है, जैसे हीलियम में क्या, एक साइड पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियल का साइन है, ये सिग्मा मत समझ लेना, बहुत बच्चे सिग्मा समझते हैं। ठीक, ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फुली पॉजिटिव हो जाए तो कोई मतलब नहीं भाई, एटम स्टेबल है। फुली नेगेटिव, ठीक, तो ये पार्शियल चार्ज हो गया, ये पार्शियल का साइन है। हाँ, तो फिर हम आते हैं, ठीक है, रीजन ऑफ दिस फोर्स इज ऑब्वियस दैट पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल। रीजन ऑब्वियस है, क्यों डाइपोल इंटरेक्शन होता है भाई? डाइपोल इंटरेक्शन रीजन सटीक है, सीधा है, क्यों? क्योंकि जब परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में जो इंटरेक्शन रहता है उसे हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है। डाइपोल में उतना कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है, डाइपोल इज़ वेरी इजी। ठीक, आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना होगा। एग्जांपल भी से आप समझ गए कि भाई एक तरफ जब पार्शियल, दूसरी तरफ नेगेटिव, और हमेशा इधर नेगेटिव नहीं लग जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। इधर नेगेटिव है तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तभी अट्रैक्ट या फोर्स लगेगा, नहीं तो फिर फोर्स ही वीक हो जाएगा ना। ये पॉजिटिव है, ठीक, फोर्स ही वीक हो जाएगा। जैसे नेगेटिव होगा, ये तो भाई रिपेल कर गया, फोर्स हो रहा है, फोर्स इज स्टिल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बट they will repel and none force will be experienced और none force will be absorbed। तो इसलिए इधर नेगेटिव का साइन, उधर पॉजिटिव का साइन। सो अब आता है हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? देखो, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, जब पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल साथ में आ जाता है, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल, ये थोड़ा बहुत लंडन डिस्पर्जन फोर्स की तरह है, बट इसमें हम स्टेबल आइटम्स नहीं कर। लंडन डिस्पर्जन के क्या, O2 इज स्टेबल, N2 इज स्टेबल, कार्बन ऑक्साइड स्टेबल है, उन सब में डाइपोल होगा तब लंडन डिस्पर्शन होगा। समझो, आप बात को समझो कि लंडन डिस्पर्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल, तीनों में आप एक चीज़ भी समझ सकते हो कि सब में इंड्यूस्ड हो रहा है, बट तीनों बहुत अलग हैं, बहुत अलग। लंदन में क्या है मैं बताता हूँ। लंदन में है कि स्टेबल एटम गेट्स पोलराइज्ड, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लंदन। Dipole induced dipole is different from the London and that to the from iron. Dipole induced dipole is that when a polar molecule, say when a non-polar is placed beside the polar molecule, or the polar is placed beside the non-polar, the non-polar gets polarized. ठीक, induced dipole is on non-polar, so the attraction between the both non-polar and the polar इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि देखो, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज्ड, ओके, में बी पोलराइज्ड लिखा है मैंने, में बी पोलराइज्ड, बट द प्रेजेंस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल नियर इट दैट बाय मेकिंग इट एन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या है? मान लो तुमने इधर, मान लो इधर तुमने HCl माइनस रख दिया, ठीक, मान लो तुमने इधर HCl माइनस, ठीक, मान लिया। अब मैं कोई नोबल रख देता हूँ, नोबल गैस एलिमेंट, मान लो मैंने रख दिया He। अब तुम लोग सोच रहे होगे He तो आपने लंदन में भी लिया था, बट लंदन में हीलियम ही एटम था। नन अदर पोलर मॉलिक्यूल केम इन द लंदन डिस्पर्जन फोर्स एज इन डाइपोल, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, HCl पोलर है, इसके पास पोलैरिटी है, बट हीलियम इज स्टेबल। सो जैसे मैंने पहले ही बताया, इधर नेगेटिव लगा, एक सेकंड में एक पेज ले लेता हूँ एडिशनल, ठीक, जैसे आप समझ लो HCl ले लिया मैंने, HCl इधर नेगेटिव आ गया और इधर हीलियम में है ना, ठीक, हीलियम इधर हम मान लो ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया, पार्शियली पॉजिटिव हो गया, पार्शियली नेगेटिव हो गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक, जैसे HCl ले लिया मैंने, HCl और इसके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा हीलियम के बीच में, ये आप ले लो, ये पार्शियली पॉजिटिव ले लो और ये आप पार्शियली नेगेटिव ले लो। अब इधर नेगेटिव आया तो भाई इधर जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा, मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव आ गया। अब ये डाइपोल है, इसके पास पोलैरिटी है, तो इसके पोलैरिटी होने की वजह से इस पर भी इंड्यूस डाइपोल आ जाएगा, तो ये भी डाइपोल मूवमेंट, ये बन गया ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक। परमानेंट पोलर विल मेक अ स्टेबल एटम पोलराइज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कॉमन एग्जांपल है भाई HCl, कोई भी ले सकते हो आप, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, क्रिप्टन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। अब हम आते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सेम एज लाइक आयरन। अब हम आते हैं, पहले आयरन डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक, ताकि आयरन इंड्यूस्ड डाइपोल में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आयरन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? देखो, ये इंटरेक्शन है बिटवीन द आयन दैट इज कैटायन। आयन क्या होता है भाई? आयन तो कैटायन और आयन होता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी कह लो, ठीक। कैटायन और एनायन होता है ना, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। आप जो मैंने पिक्चर लेके आया है Na+ का, देखो आप ध्यान से कि सोडियम, यानी क्या होता है, सोडियम में होता है, सोडियम जो मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, बट तो H2O है, तो ये जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, H2O मॉलिक्यूल जो है वो भाई एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव, इधर देखो, इधर दो कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, O पे नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक। ये मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, समझो, पॉजिटिव सोडियम पे है और इधर जो H2 आयन, जो H2O आयन उसके साइड बाय साइड है, उस पर एक पार्शियल नेगेटिव, सॉरी, 2 पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इधर आया तो इस पर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आया। देखो मैं ऐसे एक अदर से समझा देता हूँ,
देखो जैसे ये Na है, इसके साइड में H2O मॉलिक्यूल जो घूम रहे हैं ऐसे तीन तीन करके, तीन तो है ना, तीन देखा ना आपने, ये जो इसके साइड में है आयन सोडियम के, ठीक, इसमें जो इस पे पॉजिटिव आ रहा है पार्शियली, ठीक, जो H आइटम है उस पे आ रहा है कि पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर अब मैं मान लो कि नेगेटिव इधर फेस किया है, सारा नेगेटिव जो है इसकी तरफ है, ठीक, सॉरी ये मैं थोड़ा उल्टा बना दिया, रुको, ये जो सारा नेगेटिव है ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बिकॉज ऑफ द डाइपोल, इसमें भाई सब में पोलैरिटी है, सब में पोलैरिटी है, सॉरी सब में पोलैरिटी है, सब में पोलैरिटी है, सब में पोलैरिटी है, इधर नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है, आयन ही जो आयन इसमें है नहीं, आयन की वजह से जो ये आपका जो ये आया है, सॉरी ये जो है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल आयन को पोलराइज बना देते हैं, तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन हम बोलते हैं, ओके। हाँ, तो ये आयन डाइपोल, अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इज बहुत डिफरेंट है दोनों में, ठीक, आप डिफरेंस अभी पता कर लेना, अब मैं आता हूँ। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक, आयन और पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारा आयन है और ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल रहता है कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट, उसमें क्या था कि उसमें जो मॉलिक्यूल था वो पोलर था, जिसकी वजह से जो आयन था वो पोलराइज्ड हुआ। इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, उसकी वजह से जो आयन उसके चारों तरफ रहते हैं वो नहीं, सॉरी, जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलराइज्ड है, जिसकी वो पोलराइज हो जाता है क्योंकि उसके आसपास एक पोलराइज्ड आयन जब आ जाता है तो जो मॉलिक्यूल रहता है वो नॉन पोलर से पोलर बन जाता है। लाइक एग्जांपल में देता हूँ, एग्जांपल है हमारा NO3 माइनस, ठीक, NO3 माइनस क्या होता है? नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन है, हाँ ये आयन है, और आयोडीन, आयोडीन मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, NO3 माइनस के पास नेगेटिव है, तो इसके पास में मतलब आयोडीन स्टेबल जो है, यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो NO3 की वजह से पोलराइज्ड हो जाता है, NO3 आयन की वजह से पोलराइज्ड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक आयन की वजह से जो मॉलिक्यूल है उस पर पोलैरिटी आ जाता है। और आयन में क्या था, आयन डाइपोल मूवमेंट में क्या होता कि एक पोलर मॉलिक्यूल की वजह से एक आयन पे जब डाइपोल मूवमेंट या पोलैरिटी आती है उसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, और ये होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर कट डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आप ध्यान से पढ़ो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट, इसका एग्जांपल है, ठीक, NO3 माइनस जब I2 के पास आता है तो इंटरेक्शन होता है, किसका इंटरेक्शन? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, ठीक, ये था आयन, जो दो नए फोर्सेस आपने जाना अपार्ट फ्रॉम NCERT मैंने दिया है। अब आते हैं हम सबसे जो बहुत ज़्यादा चर्चित बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सभी ने पढ़ा होगा 4th चैप्टर में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कुछ ज़्यादा वो नहीं कि देखो हाइड्रोजन उन सब के साथ बॉन्ड बनाता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि हम मान लें ग्रुप 17, जो अब हाइड्रोजन जो रहता है ग्रुप 17 के साथ जब कोई भी मतलब सिंगल के साथ जब बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हम HCl को भी हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक, हम कह सकते हैं HCl। आप देखो Na2SO4 को हम कोवैलेंट बॉन्ड और वो इंट्रामोलिकुलर हो सकता है, बट हम उसको इंटर में भी कंसिडर करते हैं। इंट्रा में उस Na2SO4 पूरे को हम एक आयन मान लेते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और Na2SO4 इंटर में हम दो मान लेते हैं, अलग कर दें।
तो हाइड्रोजन पे आते हैं हम कि हाइड्रोजन क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी चाहिए होता है भाई। अब नाइट्रोजन 2,6 है, उसको तो 2 चाहिए, तो वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। बट उनसे ज़्यादा फ्लोरीन्स और क्लोरीन होते हैं जिनको एक ही चाहिए होता है, और हाइड्रोजन के पास एक ही रहता है, तो बॉन्ड बहुत तगड़ा बनता है ना दोनों का। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, देखो ये पूरे इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि डाइपोल जब आएगा तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब आपको ये जानना है कि वो फोर्स कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस्ड है, लंडन डिस्पर्शन है, आयन है, कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, जब अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आया, बट HCl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से आप प्रेफर करना कि हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम लिंक टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर होता है, एक शेयर्ड पेयर होता है। ठीक, जैसे कि ये फ्लोरीन पे आओ आप, फ्लोरीन पे ये रहता है फ्लोरीन का जो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि फ्लोरीन पे आओ, अब ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 9वां नंबर है, 9th है, 2,7 है। अब क्या है भाई 7 2 पे तो मस्त बॉन्ड, एक और इसको चाहिए भाई कि एक इसके पास लोन पेयर रह जाता है। ठीक 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनता रहता है, 7 रहते हैं, 6 तक हो जाता है, सॉरी 8 तक हो जाता है, बट जो 9 रहता है एक लोन पेयर इस पे रह जाता है। ठीक, एक लोन पेयर रहने के कारण जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के पास भी लोन ही पेयर है, उसका भी लोन है, वो भी किसी बॉन्ड में या कि काम नहीं दे रहा है, तो वो आता है भाई फ्लोरीन के साथ कि हम दोनों साथ में जुट के एक बॉन्ड बना देते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड सो दिस एंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब सुनो, हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव, फ्लोरीन का होगा नेगेटिव। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, लेने वाला नेगेटिव होता है, याद रखना। तो एक एंड क्या हो जाता है भाई, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो फ्लोरीन का भाई अलग नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन का अलग पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ओके, तो इसमें इंटरेक्शन हुआ, एक और आया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो आया ना, ये बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एक हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होता है विद अ लोन पेयर, उसकी वजह से एक साइड पार्शियल पॉजिटिव, एक साइड पार्शियल नेगेटिव, यानी कि डाइपोल आ गया। डाइपोल आया ना, डाइपोल मूवमेंट इसका हुआ ना भाई, इधर ये डाइपोल हुआ ना इसका है, डाइपोल हुआ, डाइपोल आ गया, तो क्या हुआ हाइड्रोजन। हम इसको एक और बॉन्ड कर सकते हैं कि अब मान लो ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी कह सकते हैं, बट हाइड्रोजन लेना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ ना, हाइड्रोजन तो बहुत सारे के साथ बॉन्ड बनाता है भाई, इन्फिनाइट, बहुत सारे, इन्फिनाइट नहीं बोल सकते, कार्बन इन्फिनाइट बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जनरली, पर हम कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर, आप एग्जांपल में ये दोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हमने अपने डेफिनेशन में लिया है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एग्जांपल दोगे तभी सही होगा। सो हमने आज बॉन्ड्स पढ़े, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े। अब शायद मैं नेक्स्ट अगले कुछ वीडियोस में हम वंडरवॉल्स फोर्स पढ़ेंगे और लॉस ऑफ गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, आइडल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नहीं समझ में आया आप टेलीग्राम में पूछिए, और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम लोग उस पर रूट टिप्पणी करेंगे। सो गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।